Good morning, students. Today we have to discuss chapter 3rd, that is synthetic fibers and plastics. Students, in class 7th, you have read about the natural fibers, that is silk, wool, but here we have to read about synthetic fibers and plastics. So first I will revise about the fibers and their types. You know that any thread-like strand from which fabric is made is called fiber, and fibers are basically two types. First is natural fiber and second is synthetic fiber. First is natural fibers and second is synthetic fibers. Natural fibers means those fibers which are obtained from natural source. It means the fibers which are obtained from plants and animals are called natural fibers. For example, jute, wool, silk, etc. These are the few examples of natural fibers. You have read about the jute in class 6, wool and silk in class 7. In class 8, we have to study about synthetic fibers. Synthetic fibers are also called artificial fibers or man-made fibers, and these fibers are prepared by using some chemicals. So due to this reason, these fibers are called synthetic fibers. As you know that synthetic fibers are man-made fibers, and then how we can make synthetic fibers. So synthetic fibers are made up from chemicals by a process which is called polymerization, or we can say polymerization is a process in which small units are joined to form a big unit. सपोज दैट जैसे आप कोई गारलैंड या नेकलेस देखते हैं, जैसे अगर कोई फ्लावर का गारलैंड या नेकलेस है तो उसका अरेंजमेंट इस तरह से होगा, एक एक फ्लावर को इस तरह से ऐड करके और इसके बाद एक आपका गारलैंड बनेगा। तो जो एक एक यूनिट है इस फ्लावर की, जो गारलैंड हमने बना लिया, तो ये सिंगल यूनिट है विच इज कॉल्ड सिंगल यूनिट इज कॉल्ड monomers, and when a lot of monomers are combined
in a definite pattern or in a particular pattern, then there is formation of polymers. So synthetic fibers are prepared by using polymerization process in which monomers means a lot of monomers are combined, chemically combined to form a big molecule which is called polymers. So by this method we can easily prepare synthetic fibers. Now I will discuss about the types of synthetic fibers. So basically there are 4 types of synthetic fibers. First is types of synthetic fibers. First is rayon, second is nylon, third is polyester, and last fourth is acrylic. These are the types of synthetic fiber. First is rayon, second is nylon, third is polyester, and last means fourth is acrylic. So first I will discuss about the first synthetic fiber, that is rayon. In class 7 you have read about the silk fibers. Rayon is also called artificial silk. जैसा कि आप जानते हैं कि जो सिल्क फाइबर्स थे, इट इज फर्स्ट डिस्कवर्ड इन चाइना, और बहुत समय तक चाइना के लोगों ने अदर कंट्रीज को नहीं बताया, और उसके बाद में फिर अदर कंट्रीज जब इस प्रोसेसिंग या सिल्क फाइबर्स के बारे में जानी, तो उसके बाद अब नेक्स्ट जो फाइबर्स जो कि सिल्क के जैसा ही है, मतलब सिल्क के पैरेलल ही है, वो फाइबर है आपका रेयन. सो इट इज आल्सो कॉल्ड आर्टिफिशियल सिल्क बिकॉज इट इज prepared by using plant product, that is cellulose or cellulose. अगर प्लांट प्रोडक्ट की बात की जाए तो वुड पल्प, इसके प्रिपरेशन में सबसे पहले हम किसी भी प्लांट से वुड पल्प को कलेक्ट करते हैं. वुड पल्प कहने का मतलब कि जैसे अगर कोई प्लांट्स है और उसके स्टेम को निकाल करके और उसके बाद उसको वाटर में डिजॉल्व करने के बाद एक विसिकस या फिर गाढ़ा लिक्विड बनाया जाता है, वो क्या होगा? आपका वुड पल्प होगा. अब वुड पल्प को सबसे पहले हम सोडियम हाइड्रोक्साइड, या फिर वुड पल्प प्लस NaOH. NaOH is also called सोडियम हाइड्रोक्साइड. इसमें क्या करते हैं कि डिजॉल्व करेंगे, और जैसे ही आप वुड पल्प को सोडियम हाइड्रोक्साइड में डिजॉल्व करेंगे तो यू विल गेट
विस्कस लिक्विड एंड ये जो लिक्विड होगा आपका स्टिकी होगा या फिर चिपचिपा होगा, इसीलिए आपको विस्कस लिक्विड का टर्म दिया गया है इसके लिए। अब ये जो विस्कस लिक्विड है इसको लेकर के मेटल के सिलेंडर में, ऐसे ऐसे मेटल के सिलेंडर होंगे जो कि काफी थिन होते हैं और इसमें से क्या करते हैं, पास करते हैं। और पास करने के बाद इसको सल्फ्यूरिक एसिड या फिर H2SO4 सॉल्यूशन से ट्रीट करेंगे तो आपको रेयान फाइबर्स मिलेगा। और रेयान फाइबर्स को आर्टिफिशियल सिल्क कहने का एक ही रीजन है कि इसमें आप देख रहे हैं कि प्लांट का प्रोडक्ट दैट इज वुड पल्प लग रहा है बनाने में, और इसके साथ साथ दो केमिकल्स आपके लगे, एक तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और सेकेंड सल्फ्यूरिक एसिड। सो ड्यू टू दिस रीजन रेयान इज कॉल्ड आर्टिफिशियल सिल्क। जैसे आप जानते हैं कि सिल्क इज अ कंप्लीटली नेचुरल फाइबर, बट इन रेयान देयर इज वुड पल्प एंड टू केमिकल्स दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड H2SO4। तो इस मेथड से जब हम रेयान को बनाते हैं और बनाने के बाद जब इसके फाइबर्स बन जाते हैं तो अब इसको यूज में लाते हैं। तो यूजेज इसके क्या क्या हो सकते हैं इस पे हम डिस्कस करेंगे। तो रेयान इज बेसिकली यूज्ड इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। इट इज यूज्ड इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री and you know that in textile industry we make different types of dress material such as shirt, sari and different types of dress material, daily wear materials. Rayons are also used in preparation of carpet. कारपेट भी आप जानते हैं, इसको भी हम यूज करते हैं। रेयान को जब हम ऊल के साथ या फिर कॉटन के साथ मिक्स करके बनाते हैं तो ऐसे फाइबर्स को भी हम ड्रेस मटेरियल बनाने के लिए यूज करते हैं। तो इट इज आर अबाउट द रेयान फाइबर्स विच इज द सिंथेटिक फाइबर। द सेकेंड synthetic fiber is nylon. Nylon is a first fully synthetic fibers or completely synthetic fibers which is prepared in 1931. So we can say fully synthetic fibers. Nylon is prepared by using different chemicals such as coal, water and air, या फिर we can say nylon is prepared from a chemical called petrochemicals. About petrochemicals I will explain in next chapter, coal and petroleum. क्योंकि नायलॉन फाइबर्स को बनाने के लिए किसी तरह के नेचुरल प्रोडक्ट को या नेचुरल मटेरियल्स को नहीं यूज किया गया। ड्यू टू दिस रीजन नायलॉन इज आल्सो कॉल्ड कंप्लीटली और फुली सिंथेटिक फाइबर्स। अब दिस फाइबर इज वेरी स्ट्रांग। अगर प्रॉपर्टी की बात की जाए तो इट इज
a strong, elastic and light-weighted फाइबर। स्ट्रांग हो गया मीन्स मजबूत होगा, इलास्टिक मतलब सिकुड़ने और फैलने की प्रॉपर्टी होगी, और लाइट वेटेड मतलब वेट में क्या होगा, लो होगा। तो इस तरह से इसकी प्रॉपर्टी के चलते नायलॉन जो है इट इज यूज इन मेकिंग डिफरेंट आर्टिकल्स सच एज सॉक्स, it is used in making socks। आप इससे सॉक्स बना सकते हैं, रोप्स रस्सी बना सकते हैं, टेंट बना सकते हैं, कार सीट बेल्ट बना सकते हैं, और साथ साथ स्लीपिंग बैग्स एटसेट्रा। तो यहाँ पे देखें कि नायलॉन फाइबर्स इज यूज इन मेकिंग सॉक्स, रोप्स, टेंट, कार सीट बेल्ट, स्लीपिंग बैग, एंड ड्यू टू द इलास्टिसिटी of nylon fibers and strong and lightweight property, it is also used in preparation of parachute। पैराशूट आप देखे होंगे जिसमें कि जब कभी इमरजेंसी होती है फ्लाइट ओवरों से आर्मी के या फिर जो सोल्जर्स हैं हमारे, तो वो पैराशूट से नीचे आ जाते हैं, तो पैराशूट ही आपका नायलॉन फाइबर से ही बनाया जाता है। सो इट इज आर अबाउट द नायलॉन फाइबर्स, देयर प्रॉपर्टी एंड यूजेज। सो टुडे वी हैव डिस्कस अबाउट 2 टाइप्स ऑफ फाइबर्स। आपने देखें, फर्स्ट इज रेयान, सेकेंड इज नायलॉन। अब जो नेक्स्ट फाइबर है आपके पॉलिस्टर और एक्राइलिक, नेक्स्ट क्लास में इसको हम लोग स्टडी करेंगे। थैंक यू, हैव